پرائیویٹ سکولز میں جتنے بھی بچے زیر تعلیم ہیں ان کے پیرنٹس کی ایک مانگ کافی دیر سے ایک مانگ رہی ہے کہ جو ٹرانسپورٹیشن چارجز ہیں وہ کافی زیادہ ہے. سرکار نے کافی دیر سے اس پہ سوچ وچار کر کے اب ایک فیصلہ لیا ہے جو کل ہی اس کا فیصلہ آیا ہے کہ جو سرکار نے کمیٹی ایک تشکیل دی تھی ان کا فیصلہ یہ ہے کہ میکسیمم جو فیس ایک سکول لے سکتی ہے بچے کی ٹرانسپورٹیشن چارجز جو لے سکتی ہے وہ 2000 روپے. لیکن ابھی تک جو ہے پرائیویٹ سکولز جو ہے وہ 2500 کہیں 2700 کہیں 3000 کے قریب بھی جو ہے چارجز کرتے تھے. تو آج ہم اس ایک اہم ڈیسیجن پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ پرائیویٹ سکول ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ جی انوار صاحب ہیں. وار صاحب آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ کافی دیر سے یہ پیرنٹس کی مانگ رہی تھی, اب اس پہ ایک ڈیسیجن آیا ہے جو کہیں نہ کہیں صحیح لگ رہا ہے. یہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے نا, اندھیر نگری چوپٹ راج. یہ عجیب معاملہ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ سب جوڈس ہے. یہ ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ میں آلریڈی چیلنج ہو چکا ہے اور ہائی کورٹ نے باقاعدہ اس پہ سٹے کیا ہے. اب اس آرڈر کو فیس کمیٹی سٹے کے باوجود بھی کیسے فیصلہ لے سکتی ہے, یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے. دوسری بات, ٹرانسپورٹ ایک فیسلٹی ہے, یہ سکول کے اکیڈمکس کا پارٹ نہیں ہے. سکول کا کام ہے پڑھائی کرانا, ٹرانسپورٹ دینا سکول کا کام ہے. یہ ایک آپشن ہے, ایک فیسلٹی ہے. پیرنٹ لینا بھی چاہیے, نہ لینا بھی چاہیے. کوئی بچہ لیتا ہے ٹرانسپورٹ, کوئی بچہ نہیں لیتا ہے. یہ بالکل پیرنٹ کی اپنی مرضی ہے. ضرورت اس بات کی تھی کہ 3 سالوں کے اس اکیڈمک لاس میں 3 سال اور اس کے بعد جو فنانشل کرائسس ہے, سرکار کوئی ایسا میکنزم جو ہے ڈیوائز کرتی کہ جس سے سکول والوں کو بھی پیرنٹس کو بھی راحت ملتی. لیکن الٹا اس طرح سے آرڈرز پاس کیے جا رہے ہیں, اتنی اوور گورننس ہے کہ اصل ایشو سے توجہ ہٹا کے فروعات میں یا دوسرے معاملات میں اٹینشن ڈیویٹ کیا جا رہا ہے. ایک بہت بڑی کنٹروورسی ہے کہ ٹرانسپورٹ کی فیس کیا ہونی چاہیے. کیا اس سے بہتر یہ نہیں تھا کہ آن لائن بکنگ کے پیٹرن پہ جیسے اولا اوبر کیبس اس وقت چل رہی ہیں کہ سرکار اس معاملے میں ایسا ایپ بیسڈ یہاں پہ سسٹم ڈیوائز ہوتا کہ پرائیویٹ پلیئرس اس میں, خاص کر جو ان امپلائڈ لوگ ہیں, وہ ٹرانسپورٹ چلاتے, وہ سکولوں کو ٹرانسپورٹ دیتے. جس طرح ایک ہے کانوینٹ پریزنٹیشن کانوینٹ, انہوں نے ٹوٹل ٹرانسپورٹ کا آؤٹ سورس کیا ہے. اسی طرح سے آلریڈی گورنمنٹ کے پاس یہاں آر ٹی سی ہے. آر ٹی سی بسیں اتنا پروفٹ پہ نہیں چل رہی ہیں. ضرورت یہ تھا کہ آر ٹی سی بسیں ان حالات میں جیسے وہ آر ٹی سی بسوں کو دوسرے کام میں لا رہے ہیں, بیٹر یہ تھا کہ وہی آر ٹی سی بسیں وہ سکولوں کو دیتے تاکہ سکول کی ٹرانسپورٹ فیس جو ہے وہ نو پروفٹ نو لاس پہ ہوتی. میرا یہ ماننا ہے کہ ٹرانسپورٹ فیس نو پروفٹ نو لاس پہ ہونا چاہیے. نہ سکول اس سے فائدہ کمائے, نہ سکول کا اس میں نقصان ہو, کیونکہ نقصان ہوگا تو کون دے گا؟ وہ الٹیمیٹلی بچے کو ہی دینا ہے. اب اس میں نقصان کیا ہوتا ہے جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں ٹرانسپورٹ لیتا ہوں, سکول کو لاس ہو رہا ہے, تو وہ ٹیوشن فیس سے پیسہ ایڈجسٹ کرتا ہے. اب وہ ٹیوشن فیس میں کون بچے ہیں؟ وہ بچے ہیں جو ٹرانسپورٹ یوز بھی نہیں کرتے ہیں. تو اس ناانصافی کو ختم کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ٹرانسپورٹ کو ایز اے فیسلٹی مانتے ہوئے اس میں سرکار ٹانگ نہ اڑائے. اس میں خامخواہ اس میں چونکہ پرائیویٹ یہ جو فی فکسیشن کمیٹی اس کا رول ہی نہیں ہے, اس کے ڈومین میں نہیں آتا ہے. ہاں, اس کے لیے ایک سسٹم بنایا جائے تاکہ اس میں مارکیٹ کمپٹیشن بڑھ جائے اور ایک پیرنٹ کو سستے ریٹ پہ ٹرانسپورٹ ملے. صاحب جو سرکار نے ایف ایف آر سی جو کمیٹی جو ہے بنائی, اس کے جو ہیڈ کر رہے ہیں جسٹس ستار, تو انہوں نے کل ایک بات کہی کہ ہم نے سارے سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کے اس پہ غور و فکر کر کے یہ فیصلہ لیا ہے. اب اگر سکول ہی یہ ٹرانسپورٹیشن فیسلٹی پرووائڈ کر رہی ہے, لیکن اگر یہ نامنل چارجز پہ ہو تو اس میں کیا دقت ہے؟ نہیں, دیکھیں نامنل چارج کا مطلب کیا ہے. اگر ایک بچے پہ ایک بس کا مان کے چلیے کہ 2000 روپیہ خرچہ ہے, 3000 روپیہ خرچ ہے, 1500 جو بھی اماؤنٹ خرچ ہے, مجھے بتائیے اگر یہ نو پروفٹ نو لاس پہ چلتا ہے تو ویل اینڈ گڈ. اگر یہ پروفٹ پہ چلتا ہے تو زیادتی ہے, اگر یہ لاس پہ چلتا ہے تب بھی زیادتی ہے, کیونکہ وہ لاس کون دے گا؟ لاس کہیں نہ کہیں سے یا تو اسکول والے کو کہیں سے چوری کرنی ہے, سمپل سی بات ہے نا, یا اس بچے سے لینا ہے جو بچہ ہے نا, یا
یا उनको उस बच्चे से भी चार्ज करना है जो ट्रांसपोर्ट यूज ही नहीं करता है। इस वजह से इंसाफ का तकाजा ये है कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे ट्रांसपोर्ट चलाया जाए। और फिर जब हाई कोर्ट उसको देख रहा है, व्हेन हाई कोर्ट इज सीज्ड ऑफ द मैटर, हाउ कम फी कमेटी कैन इशू एन ऑर्डर, कैसे सर्कुलर पास कर सकती है? ये आपको नहीं लगता है कि ये तो वायलेशन ऑफ कोर्ट रूल जो है, ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है? इस ताल्लुक से हम इस ऑर्डर को अच्छी तरह से एनालाइज कर रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं। हम अपने वकीलों को भी ऑर्डर की कापी जो है ऑलरेडी भेज चुके हैं। सरकार को ये भी देखना है ना, अगर कहीं कहीं आम लोगों के साथ जो है ज्यादती हो रही है कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे जो है चीट किया जा रहा है या लूटा जा रहा है, तो वो सरकार तो मुदाखलत करेगी ही इस पर। उसके लिए बाकायदा सरकार जो है, उसके लिए ट्रांसपोर्ट कमेटी होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से लोग हों, आरटीओ ऑफिस से लोग हों, एक्सपर्ट्स हों, बैंक से लोग हों जो गाड़ियों को आम तौर पर फाइनेंस करते हैं। फी कमेटी कैसे क्या लेना देना? अब जैसा आपको मालूम तो है नहीं कि ये किन पैरामीटर्स पे फिक्स आता है। उनने कहा कि हमने स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया। अब आप स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें तब उनकी बात ना माने तो वो तो एक ही बात है ना। स्टेक होल्डर्स का फीडबैक ज़रूरी है। हमने ये जो बात कही है कि ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलना चाहिए, ये तो हम डे वन पे कह रहे हैं। उसके लिए एक न्यूट्रल कमेटी होनी चाहिए। पहली बात यह है, फी कमेटी में हमारा होना ज़रूरी है। एक्ट में भी जो इस जो बारे में लिखा गया, गवर्नमेंट रूल्स भी यही कहते हैं, लेकिन आज तक फीस कमेटी ने हमें कभी भी कमेटी में रखा ही नहीं। मुझे बताइए कि एनालिसिस है कि जो रूरल एरियाज़ में जो स्कूल प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो ये फैसिलिटी 600-1000 रुपये पे 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के दायरे में जो भी आते हैं उनको 600 रुपये चार्जेस करते हैं या 1000 रुपये। वही अर्बन एरियाज़ में सिटी में जो है 2000-2500। कहीं आपको नहीं लगता कि ये ज़्यादती है या ये लूट हो रहा है? ये हमें खुद भी हैरानी है। टोल टैक्स भी सेम है, गाड़ी भी सेम है, इंस्टॉलमेंट भी सेम है, इंटरेस्ट भी एक ही है, टैक्सेस जितने भी टोल टैक्स वगैरह जितने भी गवर्नमेंट के टैक्स वो भी सेम है, इंश्योरेंस भी सेम है। सिर्फ जो डिफरेंस होगी वो ड्राइवर के सैलरी में होगी। सिटी में हो सकता है ड्राइवर की सैलरी 14,000 हो, गाँव में 10,000 हो, या सिटी में 12,000 हो, गाँव में 9,000। उससे उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो एक छोटा कंपोनेंट है। अब जब सब चीज़ें सेम है तो किस तरह ये पॉसिबल है कि एक स्कूल 600 में गाड़ी चलाए, दूसरा 2,000 ले दे? बात वही है ना, बात वही है। यानी इसका मतलब कहीं ना कहीं लूप होल है। या तो वो 600 वाला चोरी कर रहा है, या तो वो किसी दूसरे बच्चे को चीट कर रहा है, अदरवाइज कैसे मुमकिन है? आपको लगता है कि नहीं, सारे पैरामीटर्स चेक करके कि उस पे भी बर्डन ना हो। अब जो है सरकार ने जो 2019 में जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस उस पर 14% की हाइक की है। 14% हाइक करके अब जो है वो देख के मैक्सिमम जो फी ली जा सकती है वो 2,000 रुपये है। उसमें तो आप भी खुश होने चाहिए। मुझे पता है, जस्ट फॉर डिस्कशन में एक बात समझने से कासिर हूँ। एक स्कूल 600 ले रहा है, 14% के हिसाब से उसकी कितनी बढ़ोतरी होगी? चंद रुपए। दूसरा स्कूल 3,000 ले रहा है, उसकी कितनी बढ़ोतरी होगी? कितना गैप हो जाएगा आपस में? नहीं, वो कमेटी ने ये किया है कि अगर वो 14% करके अगर वो 2,000 क्रॉस करता है तो वो नहीं लेना है, सिर्फ 2,000 तक ही लेना है। अब सवाल ये है, जहाँ स्कूल वाले बस यूज करते हैं वहाँ एक छोटी विंगर भी यूज होती है, वहाँ वैन भी होती है। किस तरह से वैन का, विंगर का, बस का एक ही रेट हो सकता है? देखिए, इसमें लूप होल्स हैं। इसी वजह से हमने कहा था कि ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटी मानते हुए एक जेन्युइन रेट उसकी फिक्स करे एक इंडिपेंडेंट पार्टी। ये पहली बात है, फी कमेटी का ये डोमेन है ही नहीं। एक इंडिपेंडेंट कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो आरटीसी है, आरटीसी अपने हिसाब से फिक्स करे जो आरटीसी लेता है, क्योंकि उसमें किसी को कोई एतराज़ होना नहीं चाहिए, वो तो बाकायदा गवर्नमेंट रेट है। आरटीसी के रेट्स के हिसाब से कि बस का क्या होना चाहिए, विंगर का क्या होना चाहिए, या छोटी गाड़ियों का क्या होना चाहिए, ये मसला ही ख़त्म होगा। हाँ, ज़्यादा अच्छा ये था अगर ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट, अगर ये जिस तरह से ऑनलाइन बुकिंग होती है, ये एक आइडिया है जिसमें हम काम कर रहे हैं, वो सबसे आसान होगा क्योंकि उसमें मार्केट कंपटीशन बढ़ जाएगा और नए लोग ट्रांसपोर्ट में आएंगे, खासकर अनएम्प्लॉयड लोग। ये ज़रूरत है। रहा ये फैसला कि मैं
यहाँ बैठते हुए ये ऐसी बात अनएम्प्लॉयमेंट तब भी हो गया अगर एम्प्लॉयमेंट एक तरफ से आप कर रहे हैं कि जो आउटसोर्स करें, तो जो अभी गाड़ियाँ चला रहे हैं जो तो वो उनका तो जॉब चला जाएगा ना। तो इस वक्त जो बसें जो चलाई जा रहे हैं वो स्कूल चला रहे हैं आमतौर पे, जम स्कूलों को छोड़ के स्कूल का स्टाफ इसमें यूज होता है, ट्रांसपोर्ट मैनेजर है, हेल्पर्स। अगर यही ट्रांसपोर्ट कंपनी 4 अनएम्प्लॉयड लोग बैंक से लोन लेके ही सही, अगर वो ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाएंगे जिस तरह बॉम्बे या दूसरे स्टेट्स में है, 4 लोग आराम से अपनी बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, उससे रोजगार के एवेन्यूज और जो बढ़ेंगे। हम जो स्कूल में ट्रांसपोर्ट मैनेजर जो हम अपनी स्टाफ को यूज़ करते हैं, कम से कम वो किसी और काम में यूज़ हो सके। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे नए अंदाज से सोचने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट के सामने हम इस इशू को रखेंगे, दोबारा उनको कहेंगे कि देखिए एजुकेशन पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, एजुकेशन है। एकेडमिक्स के हवाले से सवाल आपने कहा कि ये नॉन एकेडमिक्स जो मुद्दे उठाते हैं, एकेडमिक्स के हवाले से कि कल ही जस्टिस अत्तार जो कमेटी को हेड कर रहे हैं, उनका एक और स्टेटमेंट आया कि प्राइवेट स्कूल जो है वो डोनेशन के नाम पे भी बहुत पैसे जो ले रहे हैं बच्चों से। कि उनके पास कोई पेरेंट आया था वो रिसीट लेके कि 90,000 80,000 तो जब सरकार ने ये मना किया तो ये चोरी छुपे ये काम क्यों कर रहे हैं? इसको रोकने के लिए आप कुछ कर रहे हैं? पहली बात यह है कि सरकार ने ये जो अमेंडमेंट्स लाई हैं वो इम्प्यून है, कंट्रोवर्शियल हैं। ये सब कन्फ्यूजन पैदा हो गया उन अमेंडमेंट्स की वजह से जो वन साइड अमेंडमेंट्स है, जिसमें एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। महज सेक्रेटरीट में बैठे क्लर्कों ने उनको बनाया और वो अमेंडमेंट्स जो लाए गए, जो लागू हो रही, उसमें भी जैसे देखिए इस वक्त फी कमेटी का रोल कोई न्यूट्रल रोल इस वक्त नहीं है। ये फी कमेटी वर्सेस प्राइवेट स्कूल जो हो चुके हैं, जितने भी फी कमेटी के आर्डर्स हैं, मैक्सिमम आर्डर्स जो इस वक्त चैलेंज हुई है और कोर्ट ने बाकायदा उस पर स्टे लाया है। इस वजह से जहाँ तक इस वक्त एकेडमिक्स की बात है, मैंने जो है डे वन से यही बात कही है कि स्कूलों का काम क्या है? उनका काम है एकेडमिक्स, उनका काम है एजुकेशन, उनका काम ये चीज़ें नहीं है। इन चीज़ों में फंसा के स्कूल वालों को, सीधी सी बात है, कोर इशू से उनका एडमिशन हट रहा है। दूसरी बात, स्कूल वाले क्या इम्प्रूवमेंट करें जबकि वो पिछले कई सालों से इन मामलों से बाहर आ नहीं पा रहे हैं। स्कूल वाले इस वक्त इतना परेशान हैं कि इस वक्त तकरीबन 1 ही जून की बात कीजिए, जालनगर की 42 प्राइवेट स्कूल वहाँ थे, उसमें से 18 स्कूल ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। सरकार की पॉलिसीज़ तो आप जो है मान रहे हैं कि वो अभी जो है रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन अगर वो पॉलिसीज़ शूट नहीं कर रही हैं तो आपकी तरफ से तो फिर जो कुछ होना चाहिए ना, जो आवाम को राहत मिले। आप भी कुछ करें तो जिससे आवाम को राहत मिले। अभी तक स्कूल वालों की एज पर सुप्रीम कोर्ट रूल्स काफ़ी ऑटोनॉमी थी, स्कूल वाले खुद भी डिसीजन लेते थे, पेरेंट्स को ऑन बोर्ड लेते, लेकिन इस वक्त इतनी ओवर गवर्नेंस है। इस वक्त अगर किसी को वॉशरूम भी जाना है तो उसको देखने सरकार का आर्डर जिस ताल्लुक से क्या है, हर रोज़ कोई ना कोई सर्कल और आर्डर आता है। ये ओवर गवर्नेंस है। मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूंगा कि दूसरे मामलात में आपकी मर्जी है कि आप कर रहे हैं, लेकिन कम से कम कुछ चीज़ें तो स्कूलों पे भी छोड़ो। फी के हवाले से या ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से जो भी सरकार के फैसले हुए हैं, आप ये कह रहे हैं कि आप वो उनको चैलेंज करेंगे, आप उन पे वो जो लागू नहीं करेंगे? ये जो रिसेंटली आर्डर्स आ रहे हैं, ये मोहम्मद तुगलकी आर्डर हैं, ये बिल्कुल तुगलकी आर्डर हैं ये जो आ रहे हैं। इसी वजह से मैक्सिमम आर्डर्स इस वक्त कोर्ट्स में चैलेंज हो रहे हैं। हमने सरकार से एक ही लाइन में एक सिंपल गुजारिश की थी कि देखिए, अगर आपको हम लोगों पे भरोसा नहीं है, मानिए आपको पूरे कश्मीर के एक्सपर्ट्स पे भी भरोसा नहीं है, आप महाराष्ट्र का यहाँ एक्ट लाइए और वही रूल्स आप यहाँ अडॉप्ट कीजिए। आप तो यूटी है, आप तो सब कुछ आपके अपने हाथों में। इसमें कोई देखिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं ना। सिंपल सी बात करें कि अगर यूपी का सिस्टम अच्छा तो वही एक्ट यहाँ लाइए। आप कश्मीर में क्यों रोज़ाना ऐसे ऑर्डर्स ला रहे हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं है? अब रिसेंटली सरकार ने एक ऑर्डर निकाला है कि स्कूलों को पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी अब एनओसी लानी होगी। क्या स्कूल पोल्यूशन है? क्या बच्चा पोल्यूशन है? क्या किताब पोल्यूशन है? क्या ऐसे ऑर्डर्स कहाँ से आ रहे हैं? ये हम खुद समझ से कासर है। इस वक्त हालत यह है कि स्कूल वाले जो अपनी कोर एक्टिविटी है वो उसको भूल चुके हैं। सरकार के जितने भी तालीम के हवाले से जितने भी डिसीजंस हैं, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जी अनवार साहब कह रहे हैं कि वो चैलेंज हो चुके हैं, कोर्ट में चैलेंज किया गया है।
اب سرکار ان کو آن بورڈ نہیں لیتی ہے، پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کو آن بورڈ نہیں لیتی ہے، اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ نہیں لے رہی ہے، فیصلے ایک طرف ہو رہے ہیں. یہ پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کا کہنا ہے کہ فیصلے ایک طرف لیے یونیلیٹرل ڈیسیجنز ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ سبھی اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جاتا. اب ایسے میں سرکار اور پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کے بیچ میں جو پیرنٹس کا جو وہ سینڈوچ کی طرف پھنس گئے ہیں کہ اب کیا کریں وہ، کیونکہ ان کا انفلوئنس کہیں اور نہیں ہے، صرف وہ ایک تماشائی بن کے تماشا ہی دیکھ سکتے ہیں.